معزز ناظرین، آج میں انسے میڈیا چینل میں ایک پہدار شخصیت کے مالک صادق لکھنوی سے ملوا رہا ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی شاعر، ادیب، صحافی، فنکار، لیڈر جو بھی ہو، 100 سال کی زندگی پوری کرنے میں جو ان کی خدمات ہیں وہ تمام کا احاطہ ایک نشست میں یا 2 نشست میں ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے کئی نشستیں درکار ہیں۔ صادق لکھنوی پہدار شخصیت کے مالک تھے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان میں کئی خوبیاں رہی ہوں گی اور کئی خوبیوں کو مالک تھے۔ صادق لکھنوی کی شاعرانہ حیثیت کو تو مسلم ہے، اور ان کے اشعار سے، ان کی نظموں سے، ان کے قطعات سے، ان کی دیگر چیزیں جو انہوں نے جن کا شمار شاعری میں ہوتا ہے، ان سے ہٹ کر میں ان کی ذاتی صفات اور شخصیات اور ان کی خدمات تمام چیزوں کا احاطہ کروں گا، اس لیے کہ اگر شاعری کے پر بولنے لگوں گا تو پھر ان کی دیگر چیزیں جو ہیں انہیں میں پیش کر نہیں پاؤں گا۔ میں شروع کرتا ہوں اس وقت سے جب میں نے ان کو پہلی بار دیکھا، یا ان سے میری پہلی بار گفتگو ہوئی، یا انہوں نے مجھے اچھی طرح پہچانا۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو ایسے ماحول کو دیکھا جہاں سیاسی شعور بھی تھا اور ادب کا بھی تذکرہ تھا۔ میں دونوں ماحول میں خود کو محسوس کر رہا تھا۔ صادق لکھنوی کو دیکھتا تھا کہ وہ الیکشن کے زمانے میں نکڑ جگہ جگہ، کبھی اس محلے میں کبھی اس محلے میں وہ تقریر کیا کرتے تھے۔ میں نے اس وقت پہچانا کہ یہ صادق لکھنوی ہے۔ پھر جب شاعری کی بات آئی تو مشاعرے میں انہیں سنتا تھا کہ یہ صادق لکھنوی ہیں۔ سوٹ بوٹ میں کبھی آتے، کبھی لانگ کوٹ اور کبھی پتلون میں آتے، وجیح و شکیل آدمی تھے، بلیک چشمہ لگاتے، دیکھنے میں کسی ہیرو کی طرح معلوم ہوتے۔ میں نے پہچان لیا تھا کہ یہ صادق لکھنوی ہے۔ میری ملاقات یا میری ان سے گفتگو کا آغاز اس وقت ہوا جب وہ کلکتے کے ایک وارڈ سے کارپوریشن کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ سی پی ایم نے انہیں امیدوار بنایا تھا۔ وہ اس وقت ان کے الیکشن میں ان کے لیے مجھے کام کرنا پڑا۔ میں نے خوشی خوشی کام کیا۔ مجھے اس کی بھی خوشی تھی کہ جس صادق لکھنوی کو میں صرف اسٹیج پر دیکھتا ہوں، آج میں صادق لکھنوی کو اپنے ساتھ ووٹروں سے ملوا رہا ہوں، جگہ جگہ ان کو لے کر جا رہا ہوں۔ یہ میرے لیے ایک خوش قسمتی کی بات تھی اور خوشی کی بات تھی۔ میں ان کا بولیں ایجنٹ بھی رہا۔ یہ تمام باتیں تو اپنی جگہ پر ہیں، وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میرے حلقے میں ایک گروپ ایسا تھا جو ہماری پارٹی کو فیور نہیں کرتا تھا، لائک نہیں کرتا تھا، پسند نہیں کرتا تھا۔ ان لوگوں کا الگ معاملہ تھا، ان لوگوں کا وہ سب دینی مذہبی قسم کا آدمی تھے، لیکن میرا ان لوگوں سے تعلق جو ہے وہ برقرار تھا اور سبھی مجھے عزیز رکھتے تھے۔ ایک بار اس میں سے کسی صاحب نے کہا کہ انجم صاحب، صادق لکھنوی راجہ بازار کے ٹرام ڈپو کے پاس جو تقریر کر رہے تھے الیکشنی جلسے میں، وہ ان کو ایسی تقریر نہیں کرنی چاہیے تھی، اس لیے کہ انہوں نے علماء کرام کی شان میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ مناسب ان کے لیے نہیں ہے اور ہم لوگ کو ان سے تکلیف پہنچی۔ تو جب میرے کانوں میں یہ بات آئی تو میں سوچنے لگا کہ واقعہ ہے، اگر ایسا صادق صاحب نے کہا ہوگا تو یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے۔ میں کیا کروں نہ کروں، کچھ سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی۔ میں نے فوراً خیال کیا کہ ان کو آگاہ کرنا چاہیے۔ تو آگاہ کی صورت کیا ہوگی؟ میں تو ان کے گھر پر کبھی گیا نہیں تھا، باہر سے انہیں دیکھتا تھا۔ میں نے اس زمانے میں پوسٹ کارڈ کا معاملہ تھا، میں نے پوسٹ کارڈ لکھا اور اس میں لکھا کہ آپ کے بارے میں ایسی شکایتیں سننے کو ملی ہے، لہٰذا آئندہ آپ اس کا احتیاط برتیں، اس کا خیال رکھیں کہ کم سے کم یہ ہے کہ علماء دین پر یا علماء کرام پر یا مذہبی افراد پر یا مذہبی شخصیات پر کچھ آپ بولنے سے خود کو باز رکھیں، ورنہ بات جو ہے کچھ اور بھی ہو سکتی ہے۔
की है। मैंने 2 नंबर सदरकन स्ट्रीट के पते पर जहाँ उनकी रिहाइश थी मैंने पोस्ट कार्ड भेज दिया और 4-5 रोज के बाद उसका जवाब आया। जवाब में ये लिखा हुआ था कि अंजुम अलीमादी साहब, मैंने आपका ख़त पढ़ा और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक बात की तरफ तवज्जो दिलाई है मुझे। तो मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि यकीनन मेरी तकरीर को जिन लोगों ने सुनी है उन्होंने तवज्जो नहीं दी है मेरी गुफ्तगू पर। मेरा कहने का मतलब या मकसद ऐसा नहीं था जिससे किसी बुजुर्गान दीन की तौहीन हो, तजलील हो या उनके पैरोकारों को, उनके फॉलोअर्स को, उनके मानने वालों को तकलीफ पहुँचे। मैं उलमाए कराम के ख़िलाफ़ या उलमाए कराम की शान में गुस्ताखी कर ही नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि मैं मुहद्दिस देहलवी के पैरोकारों में से हूँ, कभी मुझसे ये बात नहीं हो सकती है, आप इस याद रखिए। और उन्होंने फिर ये कहा कि आप उन लोगों तक मेरी बात पहुँचा देंगे जिन्हों मुगालता हुआ, जिन्हों धोखा हुआ मेरी तकरीर सुनने में, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और उन्होंने मुझे मेरा शुक्रिया अदा किया कि एक चीज़ की तरह आपने तवज्जो दिलाई। ये बात तो हो गई। उसके बाद फिर एक ज़माना जब वो आया कि उन्होंने कहा कि किसी ज़रूरत से मैं वहाँ गया था, तो उन्होंने कहा कि अंजुम साहब आया कीजिए। तो आया कीजिए उन्होंने बात कही या जुमला निकला उनके मुँह से, तो मैंने ये महसूस किया कि सालिक साहब चाहते हैं कि यहाँ मैं आना जाना शुरू कर दूँ और उनके राब्ते में रहूँ। मैं जाने लगा वो ज़माना, और टिल हिज डेथ, उनके इंतकाल के वक्त तक मैं उनके घर में आना जाना करता रहा। 42 साल का अरसा गुजारा मैंने उनसे ताल्लुकात के कहिए या उनसे राब्ते में कहिए। ज़ाहिर बात है कि इतने सालों तक, इतनी तवील मुद्दत अगर किसी शख्स से अगर रामत रफ्स रहे और तमाम दोस्ताना कह लीजिए या न्याज़मंदाना कह लीजिए, दोस्ताना तो नहीं, हमारे उम्र में तो बहुत बड़े थे वो, तो न्याज़मंदाना ताल्लुकात कहिए, तो ऐसे लोगों से बहुत सारी बातें होती हैं। और जो एक वक्त ऐसा भी आता है कि अगर वो बुज़ुर्ग होता है तो बुज़ुर्ग दोस्त बन जाता है। तो यूँ समझ लीजिए कि सालिक लखनवी मेरे बुज़ुर्ग दोस्तों में से थे, गरचे वो मेरे वालिद से कुछ ही छोटे रहे होंगे। बहुत सारी बातें उनके ताल्लुक़ से है। आइए मैं उनके हवाले से इस गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ और आबशार से, रोज़नामा आबशार से मैं गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। ऐसा है कि मैंने जब पढ़ना लिखना सीखा तो मेरे वालिद ने मेरी उर्दू को ठीक करने के लिए अखबार पढ़ाना शुरू किया। वो रात में आते थे काम से, आज़ाद हिंद पढ़वाते थे और सुनते थे, और जहाँ जहाँ मैं पढ़ने में गलती करता था मेरे वालिद उसको दुरुस्त करते थे कि ऐसा नहीं, ऐसा पढ़ो, लफ्ज़ ये नहीं है, लफ्ज़ वो नहीं है। और फिर एक ज़माना वो भी आया कि वो मुझसे मुरासला लिखवाते थे। तो डिक्टेशन के वक्त वो चेक करते थे मेरी कॉपी को, और इमला है, तलफ़ुज़ है, ये तमाम चीज़ें जो है इमला वगैरह दुरुस्त कैसे करना होगा या क्या दुरुस्त इमला है, वो कहाँ है, की है, क्या होना चाहिए, वो सब बताते थे। तो दिलचस्पी मुझे अखबार से हो गई थी। उसके बाद आज़ाद हिंद की बात थी। फिर 1954 में दीवारों पर मैंने पोस्टर चश्मा देखा, उसमें ये लिखा हुआ था कि मज़दूरों का तर्जुमान, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, या ऐसी किस्म का जुमला था कि आबशार जो है रोज़ाना आबशार जो है मंजर आम पर आ रहा है। अखबारों में अखबार का ऐलान था, पोस्टर चश्मा हुआ, मुस्लिम उर्दू बस्तियों में मैंने भी पोस्टर पढ़ा। और मैं आपको बता दूं कि इस अखबार के ऐलान से लोगों में खुशी दौड़ गई। महल्ले के लोगों में, खुसूसन जो मजदूर पेशा लोग थे, उन लोगों को खुशी इस बात को हुई कि ठीक है, आबशार जब निकलेगा तो वो हम लोगों की तर्जमानी बेहतर तौर पर कर सकेगा। ये लोगों का अपना ख्याल था। तो आबशार ये ख्याल इसलिए भी था कि इब्राहिम होश की सहाफ़त से लोग वाकिफ़ थे, और सालिक लखनवी उस ज़माने में सहाफ़त नहीं करते थे, बल्कि वो तो कारोबारी आदमी थे। उन्होंने अखबार निकाल दिया था, मालिक वही थे। तो इब्राहिम होश से लोग वाकिफ़ थे कि इब्राहिम होश जो है उनका अखबार जब होगा तो बेहतर तौर पर तर्जुमानी कर सकेंगे।
आबशार निकला शाम का अखबार। जब शाम का अखबार निकला तो उसमें एक कातिब हुआ करते थे आबशार में, अहसन दरियाबादी, जो शायर भी थे, और उन्होंने 2 मिसरों में आबशार की तारीख निकाली थी। इससे मुराद ये है कि 2 मिसरों में से मिसरा सानी में लफ्ज़ों को जोड़कर तारीख निकाली जाती थी, जिससे 1954 जाहिर होता था। यानी अखबार जो निकला 1954 में निकला, और उनका जो शेर था, या यूँ कहिए कि उनके जो 2 मिसरे थे, वो ये था कि वाक़याते आलमे असबाब का आईना दार, वाक़याते आलमे असबाब का आईना दार, जलवगर है बेजरों मेहनत कशों का आबशार। इन 2 मिसरों में शायर अहसन दरियाबादी ने आबशार की पॉलिसी में वाज़ा कर दी, मजदूरों के दर्द को भी उजागर कर दिया, और वाक़यात को सही पेश करने का एक अंदाज़ा भी उन्होंने लगाया, और इशारा भी दिया कि आबशार इसी किस्म के मौज़ूआत को वाक़यात पर मुश्तमिल शाया होता रहेगा। सादिक लखनवी ने मुझे बताया था कि अंजुम साहब अखबार में मेरे अफसाने तो छपते रहे बराबर आज़ाद हिंद में, लेकिन मुझे अखबार में कुछ लिखने से, अफसार के एडिटर बनने से कोई दिलचस्पी थी नहीं। मेरा बड़ा कारोबार था और कारखानादार था मैं। तो एक रोज़ इब्राहिम हो, जो मेरे गहरे दोस्तों में थे, साथ घूमना फिरना, उठना बैठना, मुशायरे में जाना और बेतकल्लुफ़ाना गुफ्तगू करना, तो इब्राहिम हो आते थे मेरे यहाँ। तो उन्होंने एक रोज़ कहा कि सादिक साहब, कोई ऐसी सूरत नहीं निकल सकती है जिसमें या जहाँ मैं आज़ादाना तौर पर सहाफ़त का काम अंजाम दूँ, या सहाफ़त करूँ, या अपनी राय को पेश कर सकूँ। तो सादिक साहब ने कहा कि मैंने पूछा कि आपका मकसद क्या है, क्या कहना चाहते हैं आप हमको खुल कर कहिए, मैं गौर करूँगा उस पर। उन्होंने कहा कि अगर कोई अपना अखबार होता तो मैं आज़ादाना सहाफ़त करता, और अपनी मेरी जो पॉलिसी है, मेरा जो नज़रिया है, आपका जो नज़रिया है, उस नज़रिए को मैं आबशार में पेश करता। तो सादिक साहब ने कहा कि ठीक है, आप देखिए क्या कर सकते हैं और क्या किया जा सकता है इस मामले में। दौरान गुफ्तगू उन्होंने कहा, सादिक साहब ने, कि अंजुम साहब, उस वक्त मुझ पर खून बरसता था। क़ारीन इस लफ्ज़ खून पर गौर कीजिए कि उस वक्त मुझ पर खून बरसता था। सादिक साहब ने कहा कि अंजुम साहब, जब आबशार तय हो गया कि अखबार का नाम रहेगा आबशार, तो आबशार के नाम से मैंने पहले बैंक अकाउंट खोला, और उसके बाद जितनी ज़रूरतें पेश आती रही, ऑफिस का किराया पर लेना, मशीन का मंगवाना, कातिबान को हायर करना या एंगेज करना, जो लवाजमात उसमें ज़रूरत थे, लवाजमात सबको मैंने पूरा किया। उसके बाद फिर आपने देखा कि फिर मैंने पोस्टर निकाला भी। और उनका कहना यह है कि आबशार इतनी तेज़ी से आबशार ने तरक्की की कि मैं सोच भी नहीं सकता था, इसलिए कि हर अखबार का कायदा ये होता है, देखा भी गया है कि वो आहिस्ता आहिस्ता पिकअप में आता है। लेकिन जैसे कि आबशार के लिए लोग इंतज़ार में थे कि आप बोले इतना मैंने उसकी रफ्तार इतनी तेज थी तरक्की की और पॉपुलेशन की कि मकबूलियत की, पॉपुलेशन कर रहा हूँ मैं, मकबूलियत की, कि वो समझ लीजिए कि आनन फानन उसकी इशात में, सर्कुलेशन में इजाफा होता रहा। और मैं आपको बताऊं कि मैं छाप नहीं सकता था। शाम को अखबार निकालना, अखबार का टाइम तो फिक्स है कि इतने बजे तक हमको मार्केट में आबशार को पहुंचा देना है, हाकरों को दे देना है। अगर नहीं दूंगा तो वो कब बेचेगा? शाम के बाद अगर अखबार जाता है वो अखबार बासी हो जाता है, शाम के पहले पहुंचा देना है। तो मैंने उसके लिए बंदोबस्त किया, एक और कहीं पर छपने का इंतज़ाम किया। तो इस तरह से आबशार चलता रहा। और बस ये आबशार की कहानी यही है। और इसमें इब्राहिम होस्ट के कलम का बहुत ज़्यादा अमल दखल था कि उसके कलम ने मजदूरों का दिल जीता और मजदूरों की तवज्जो आबशार की तरफ माइल की। दूसरी बात यह है कि इब्राहिम होस्ट के अंदर में तो सहाफ़ती बहुत चमक दमक थी पहले से, और आबशार में उनको जो मौका मिला कि आज़ादाना सहाफ़त, तो खुल कर उन्होंने अपनी पॉलिसी का इजहार किया, मजदूरों के दुख दर्द को समेटा, उसका इजहार करते रहे अपने अखबार में, एहतजाज करते रहे अपने अखबार में। और सबसे बड़ी बात यह है
कि उन लोगों को आबशार का गुरविदा बना दिया जो कम पढ़े लिखे लोग थे, चाय खानों में बैठने वाले मजदूर पेशा हजरात, जो अखबार सुन करके मौजूद हुआ करते थे। उसमें उन लोगों के लिए उन्होंने काला चांद डोमा जैसा कलकत्ते की ज़बान में एक कॉलम शुरू किया जो बहुत मकबूल हुआ। तो ये आबशार की कहानी है। लेकिन कोई भी अखबार जो है वो हमेशा एक शख्स तो रहता नहीं है, हर एक उम्र होती है, एक उम्र तक अखबार चलता है, चाहे वो उम्र जितनी भी हो। आबशार भी चलता रहा, बहुत चला, बहुत मकबूल हुआ। पूरे हिंदुस्तान में आबशार को जाना गया। बड़े बड़े शायर, अदीब और उर्दू से जुड़े हुए जो सियासतदान थे वो आबशार को पसंद करते थे। लेकिन एक दौर ऐसा आया कि आबशार को भी बंद करना पड़ा। इसके पीछे जितनी कहानियाँ हैं, जितने असबाब हैं, जितनी वजूहात हैं, मैं आपको तो नहीं सुनाऊंगा, कभी वक्त पड़ेगा तो सुनाऊंगा। लेकिन वो आबशार जो है वो बंद हो गया। उस वक्त हम लोगों को अफसोस हुआ कि एक अखबार हम लोग का था, यानी हम लोग से मुराद ये है कि मजदूरों का था और वो गरीब और मजदूरों का था, गरीब आवाम का था, आवाम का अखबार था, तो वो बंद हो गया। बहरहाल ये अखबार की कहानी है आबशार की। और उसके बाद हुआ ये कि 3.5 साल तक अखबार बंद रहा किसी भी वजह से। असबाब उसके क्या थे यहाँ बोलना मुनासिब भी नहीं है और वक्त ज़ाया होगा। तो 3.5 साल के बाद अखबार निकला। जबकि अखबार जब बंद हुआ था तो कलकत्ते के मकबूल अखबार आज़ाद हिंद ने एक अदारिया लिखा था कि एक अखबार की मौत। ये अदारिया लिखा उन्होंने, उनको भी यकीन नहीं था, ये मालूम नहीं था कि 3.5 साल के बाद कोई अखबार ज़िंदा हो सकता है। अखबार आबशार फिर ज़िंदा हुआ। ज़िंदा इस तरह हुआ कि जब बाया महाज की हुकूमत बनी, अब कुछ दिन बीते, तो हुकूमत में और खुसूसन पार्टी में ये बातें होने लगी कि एक अखबार होना चाहिए जो आवाम का तर्जुमान हो। क्या अखबार निकले, कौन सा अखबार निकले, क्या नाम होगा, ये बातें होती रही। और उस अखबार के निकालने में या निकलवाने में, दोनों बातें मैं कर रहा हूँ। निकालने तो मैं तो नहीं निकाल सकता था, निकलवाने में मारूफ CPM रहनुमा और सहाफ़ी मोहम्मद अमीन और साबिक MLA मोहम्मद निज़ामुद्दीन और मैं, ये तीनों की कोशिशें कुछ ज़्यादा रही। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हम तीनों की कोशिशें थी, और लोगों की भी कोशिशें रही कि अखबार निकलना चाहिए। तो फैसला हुआ कि अखबार तो निकलेगा आबशार का फैसला हुआ कि आबशार निकलेगा, नाम आबशार रहेगा और कोई दूसरा अखबार नहीं रहेगा। इसलिए कि ये मजदूरों का अखबार रह चुका है, जमहूरियत पर यकीन रखने वाला रह चुका है, पब्लिक इसको जानती है, आवाम इसको जानते हैं, तो आबशार निकलेगा। तो अब सवाल है कि आबशार की मिल्कियत तो सालिक लखनवी की, तो फिर क्या होगा। पार्टी ने रुजू किया सालिक साहब का, ऐसी बात है और मिल्कियत तो आपकी है, तो आप क्या सोचते हैं। सालिक साहब ने कहा कि भाई आप जब पार्टी ने फैसला किया तो मैं तो पार्टी से अलग नहीं हूँ, जब चाहे इसको ले लीजिए। उन्होंने मिल्कियत जो है वो एक कमेटी बनी थी, डेमोक्रेटिक फोरम फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। तो अंजुमन जमहूरियत पसंद मुसन्नफ ये एक हिसाब से डेमोक्रेटिक फोरम फॉर नेशनल इंटीग्रेशन ये कमेटी बनी थी। उस कमेटी को बनाया गया था कि यही कमेटी अपनी जानिब से, अपने प्लेटफॉर्म से, अपनी मिल्कियत में आबशार को निकालेगी, और वैसे ही हुआ भी। आप 30 साल वो आबशार भी चला, मुझे भी शामिल किया गया आबशार में कि आपको भी कुछ वक्त देना था, वो अलग मामला है, मैं भी इसमें था। इस तरह से सालिक लखनवी ने, तो फ़ायदा ये हुआ सालिक लखनवी के लिए, फ़ायदा मैं नहीं कहूँगा बल्कि उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई कि उनको बनाया गया मुदीर, एडिटर आबशार उनको बनाया गया। जाहिर बात है कि जब एडिटर होता है तो उस पर बड़ी जिम्मेदारी आती है, और सालिक साहब का नाम एडिटर में आ गया तो उनकी जिम्मेदारी बढ़ी, इदारिया लिखना पड़ा, पूरे अखबार को देखना पड़ा। तो सालिक साहब ने ये फरीज़ा भी अंजाम दिया। लेकिन आपको ये ताज्जुब होगा कि ऐसा भी बहुत कम मिलता है। एक एडिटर की तनख्वाह अगर आप मालूम कीजिएगा तो काफ़ी तनख्वाह मिलती है एडिटरों की, लेकिन सालिक साहब ने 1 पैसा
लेना गवारा नहीं किया, ना एडिटरी के लिए और ना ही डिक्लेरेशन जो है जिनके नाम से था अखबार का उसके लिए बिलौस बिला मुआवजा खिदमत करते रहे वो। और बहैसियत आदमी इंसान की हैसियत से बहुत हमदर्द थे। बल्कि मैं जानता हूँ कि सालिक लखनवी ने आबशार से पैसा नहीं लिया, लेकिन उन्होंने आबशार के बाद स्टाफ को उन्होंने मदद की, उनकी दस्तगीरी की, उनके वक्त पर काम आए, ये बड़ी बात है। और जबकि उनको पैसा लेना चाहिए तो पैसा लिया भी नहीं उन्होंने। तो फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि डॉक्टरों ने कहा कि आप 3 मंजिला से ज़्यादा सीढ़ी नहीं चढ़ सकते हैं और बेहतर है कि आप 3 मंजिला में सीढ़ी न चढ़े तो ज़्यादा अच्छा है, वैसे ज़रूरत पड़ जाए तो आप जा सकते हैं। तो उन्होंने दफ्तर आना जाना कम कर दिया, लेकिन वो अपने घर में बैठे बैठे दफ्तर का जो काम होता था, यानी एडिटोरियल लिखना और कुछ ऐड करना, कुछ मशवरा देना, कुछ मजमून को का इंतखाब करना, ये सब सालिक लखनवी करते थे जब तक कि शक्कत रही। उसके बाद फिर उनकी सेहत ऐसी नहीं रही कि बार बार हॉस्पिटलाइज होना, नर्सिंग होम में भर्ती होना, और ये आज ये बीमारी है, कल वो बीमारी है, परसों वो बीमारी है, तो ये सब चीज़ें उनको परेशान कर रहे थे। लेकिन वो बहुत ही माने ये भी कर रहे थे। तो अब ये आबशार में काम कौन चलाएगा? काम चलाने वाले थे इंचार्ज रईस अहमद जाफरी, वो भी बीमार पड़ गए, उम्र हो गई, और भी लोग थे। मुझे काम दिया गया, काम में मेरे इजाफा किया, जिम्मेदारी में इजाफा किया गया। तो सालिक साहब के अंदर में बड़ी वजहदारी थी। मैं जब पहली बार उनको नर्सिंग होम में देखने गया, अर्ज करने गया, तो 3-4 रोज के बाद उनका खत मेरे पास आ गया कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे पास मेरी आदत के लिए आए, मेरी मिजाज कुर्सी के लिए आए। ये उनका ये था। तो जब उनका काम मैं कर देता था कुछ तहरीरी काम, तो उनके लिए वो शुक्रिया अदा करते थे कि अंजुम साहब आपने मेरा काम संभाल लिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, या आपने ये मेरा काम की, जिम्मेदारी मेरी थी लेकिन आपने इसको भी संभाल लिया। तो सालिक साहब में बड़े वजहदार आदमी थे। और आदमी के लिहाज से तो मैं ये कहूँगा कि आदमी तो तरक्की पसंद ख्याल के बहुत है, बहुत सारे लोग, लेकिन 11 बजे से उनका घर आमद लोगों को शुरू हो जाती थी। उसमें शायर भी आ रहे हैं, अदीब भी आ रहे हैं, फनकार भी आ रहे हैं, पार्टी के लोग भी आ रहे हैं, और सबसे एक साथ स्वरूप। कभी उन्होंने ये नहीं देखा कि आने वाला किस मर्तबा का है, कि क्या पहन कर आया है, उसको कहा, बस सबके साथ एक साथ लोग। ये बहुत बड़ी बात थी, कभी उन्होंने फर्क महसूस नहीं किया। और वो यही बात है कि सालिक साहब के यहाँ जाने में किसी को कभी आड़ महसूस नहीं हुआ, किसी को ऐसी परेशानी नहीं हुई कि जाना मुनासिब होगा कि नहीं होगा। छोटों से भी बात करते थे वो बहुत ही खुशदिली के साथ, बड़ों से भी करते थे, अपने हमदर्दियों से भी करते थे। ये तमाम चीज़ें सालिक साहब की आ रही। शायरी के मामले में ये है कि शायरी उन्होंने बाद में शुरू की। ऐसा होता है कि आदमी पहले नस्र से शुरू करता है। बहुत सारे लोग आमतौर पर देखिएगा कि उन्होंने नस्र निगारी शुरू की है, तब जाके बाद शायरी शुरू की है। तो पहले उन्होंने शुरू किया तर्जुमा, क्योंकि वो उनकी अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी, सेंट जेवियर के पढ़े हुए। एक जगह से उन्होंने BA किया सेंट जेवियर से, और उमेश चंद्रा कॉलेज से उन्होंने BCom किया। फिर उन्होंने क्या सोचा, उनकी समझ में क्या बात आई कि जब शायरी वारी करने लगे तो उनकी समझ में बात आई कि फ़ारसी को भी कुछ और तवाना और मजबूत कर लिया जाए, फ़ारसी को भी। तो वो चले गए लखनऊ, और वहाँ से दबीर कामिल, फ़ारसी में उन्होंने दबीर कामिल की सनद हासिल की। तो अब ये समझ लीजिए कि ये उस ज़माने में कि अंग्रेज़ी पढ़े हुए लोग और भी सेंट जेवियर कॉलेज से, तो वो अंग्रेज़ी के में जो अफसाने लिखे जाते थे उसका वो तर्जुमा करते थे। और उन्होंने मपासा और इसका उस ज़माने में जो नामी गिरामी जो अफसाना निगार होते थे, नामी निगार होते थे, वो उन सब का वो तर्जुमा करते थे। और तर्जुमा करते करते उन्होंने, उनका जब ज़हन जो है वो मुंतकिल हो गया अफसाना निगारी की तरफ। तो अफसाना निगारी की तरफ जब ज़हन मुंतकिल हुआ तो उन्होंने अफसाना लिखा। अब लिखा तो एक कलमकार की ये तबीयत होती है कि भाई हमने जो लिखा है वो आवाम तक पहुंचाना चाहिए। तो आवाम तक पहुंचाने के लिए क्या सूरत हुई? वो तो
اخبار ہے، رسالہ ہے، ریڈیو ہے، تو ریڈیو میں اور رسالے میں تو سب کی پہنچ ہوتی نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ اپنے لکھے ہوئے اردو افسانے کو، اس زمانے میں آزادی سے پہلے کی بات ہے یہ، جیسا کہ انہوں نے بتایا تھا کہ اس زمانے میں روزانہ ہند جسے اس زمانے کے مجاہد آزادی اور نیشنلسٹ جن کو کہا گیا، نیشنلسٹ صحافی عبدالرزاق ملیح آبادی اس کے ایڈیٹر تھے، اور کلکتے کے ساگر دت لین میں اس کا آفس تھا۔ تو سالک صاحب نے ہم کو بتایا تھا کہ میں وہاں جا کر افسانہ وہ لیٹر باکس میں ڈال دیتا تھا، بہت بڑا لیٹر باکس تھا، اسی میں ڈال دیتا تھا، اور اس کے بعد افسانہ جب نہیں چلتا بہت مایوس ہو جاتا کہ اس کے معنی کہ میرا افسانہ قابل اشاعت نہیں تھا، مایوس ہو جاتا تھا۔ اور اسی طرح سے کر کر کے 15 سے زائد افسانے میں نے وہاں ڈراپ کیے، اور کوئی بھی افسانہ نہیں چھپا۔ میں بہت مایوس ہو گیا کہ اس کے معنی کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں افسانہ لکھوں، لیکن دیکھتا ہوں کچھ اور افسانہ بھیج کر کے 17ویں افسانے کی اشاعت کے لیے ان کا ایک خط آ گیا کہ آپ کا افسانہ منتخب کر لیا گیا ہے اشاعت کے لیے، لکھتے رہیے اور ہو سکے تو آپ ملاقات کیجیے۔ سالک صاحب کا بیان ہے کہ جب یہ خط ملا عبدالرزاق ملیح آبادی کا تو میں بہت خوش ہوا کہ چلیے آج گرین سگنل مل گیا ہے کہ میرا افسانہ اس قابل ہو گیا ہے۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر فرصت ہو تو مل لیجیے۔ تو میں گیا، اور وہ سر جھکا کے لکھتے رہتے تھے، جلدی بات نہیں کرتے تھے وہ، تو سر اٹھا کے دیکھا تو میں نے کہا میں سالک بولی جی ہاں آپ کا تو افسانہ میں نے سلیکٹ کر دیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ حضور آپ نے مجھے بلایا تھا کہ مل لیجیے۔ ہاں ٹھیک یاد آیا، وہ ایسا ہے کہ اب لکھیے، اب آپ کا افسانہ اس قابل ہو گیا ہے کہ آپ لکھتے رہیے، اور میں اگر نہ بھی چھاپوں تو کہیں بھی آپ کا افسانہ چھپ جائے گا۔ تو سالک صاحب نے بتایا کہ انجم صاحب بہت مجھے اچھا لگا، اور یوں سمجھ لیجیے کہ میرے افسانہ نگاری کی تائید میں کہہ لیجیے، یا اس کی توقیر میں کہہ لیجیے، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ افسانہ نگاری کی طرف انہیں مائل رکھنے پر زور دیا، یہ عبدالرزاق ملیح آبادی کا تھا۔ میں نے ان کے افسانے پڑھے ہیں، تو ان کے افسانے جتنے بھی پڑھے ہیں جو بیرونی اور یورپین مصنفوں کے یا افسانہ نگاروں کے جو افسانے انہوں نے ترجمہ کیے ہیں، تو بہت سے افسانے ہیں، ان کی کتاب بھی آئی ہے، کئی 7-8 کتابیں ان کی ہیں، نام تو ابھی میں یاد نہیں ہے لیکن ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان افسانوں کے انتخابات سالک صاحب نے بڑے اچھے کیے تھے، اور ان کا انتخاب جو ہے واقعی ہے کہ وہ افسانہ جو بھی پڑھے گا یا جس نے پڑھا ہوگا یا پڑھے گا وہ اس کی تعریف کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔ اس کے بعد افسانہ شاعری کیسے شروع انہوں نے کی، یہ کبھی انہوں نے بتایا نہیں، اور ہم نے پوچھا بھی نہیں، اگر میں پوچھتا تو بتا دیتا۔ لیکن انہوں نے یہ کہا، ایک بات کہی یہ تھی کہ انجم صاحب میں نے کسی کو استاد نہیں بنایا، باضابطہ جو استادی شاگردی کی روایت جو چلی آ رہی تھی بہت دنوں سے، یا ابتدا سے جب سے شاعری شروع کی اردو کی، لیکن میں نے کسی کو استاد بنایا نہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں میں نے کتابوں سے معلوم کر لی تھی، اور اس کا علم ہوا تھا اذان و بہور کا، لیکن پھر بھی میں سوچتا تھا کہ کچھ رہ نہ جائے، اس لیے میں جو بھی کہتا تھا تو سب سے پہلے پرویز شاہدی کو میں سنا دیتا تھا۔ یہ بات صحیح ہے، میں آپ کے سامنے اس کا اقرار کر رہا ہوں کہ میں نے کسی کو استاد نہیں بنایا، لیکن میں جب بھی کوئی نیا کلام کہتا تھا، وہ نظم ہو، غزل ہو، رباعی ہو، جو بھی ہو، قطع ہو، جو جس صنف میں تو میں پہلے پرویز شاہدی کو سنا دیتا تھا، اور وہ بھائی بولتے تھے، پرویز بھائی جو ہے وہ اس کو کبھی ضرورت پڑی تو کچھ ٹھیک کر دیا، میں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہی ہے، کام چل جائے گا، وہ زیادہ کچھ کرتے نہیں تھے، بولے ٹھیک ہے کام چل جائے گا، رہنے دیجیے۔ تو اس صورت سے وہ، لیکن ایسا ہوا
कि सालिक साहब का कोई उस्ताद तो नहीं था, लेकिन वो शेर कहते कहते इतने मशराक हो गए थे कि तबीयत की मौजूदियत का जवाब नहीं। और अरूज वगैरह भी सुनते हैं। अरूज के मामले में ऐसा है कि मशहूर से कलकत्ते में वो, मैंने कभी आजमाया नहीं कि वो कितना अरूज जानते हैं, क्या करते हैं, लेकिन वो कलकत्ते में मशहूर थे कि सालिक लखनवी अरूजदा हैं। लेकिन वो कहते थे कि अंजुम साहब, मैंने अरूज को किताबों से हासिल किया, अरूज का फ़न जो है उसे किताबों से पढ़ के हासिल किया, और मैंने उस पर गौर किया, और उसी हिसाब से मैं, तो अब तो मुझे किसी अरूज की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ऐसा लगता है कि जो मैं कहता हूँ वो ढला ढलाया मिसरा है, और कोई खामी तो नहीं है, मैं रखता हूँ। और किसी ने आज तक कहा भी नहीं कि हाँ सालिक साहब आपका मिसरे में ये है वो, कुछ कहा भी नहीं, तो मैं मुतमईन भी हूँ। ये सालिक साहब का ये था। नज़में कहते थे, गज़ल भी कहते थे, क़साइद भी कहते थे। रुबाइयाँ उनकी मैंने नहीं पढ़ी हैं, रुबाइयाँ कहते थे कि नहीं कहते मैंने पढ़ी, लेकिन क़साइद मैंने देखे हैं, गज़लें देखी हैं। और वो नज़मों के शायर थे, दरअसल नज़में ज़्यादा कहते थे वो। उसके बाद और भी असनाफ में बच्चों के लिए भी कुछ कहा उन्होंने। तो वो एक तरफ उन्होंने आगाज़ किया था अफसाने से, अब तर्जुमा से आगाज़ किया अपनी तहरीर सिलसिले का। उस बाद अफसाना, उसके बाद इधर आ गए शायरी। जब शायरी में आए तो अफसाना नवेशी ख़त्म हो गई, उधर तवज्जो देने का मौका नहीं मिला। अब आ गए वो शायरी पर, और शायरी में तवाज़माई करने लगे। लोगों ने उनके बारे में मज़ामीन लिखे शायरी पर, अदब इत्फ़ाल पर, बच्चों के अदब पर। तो वो ऐसा लगा मुझे कि हर आदमी के अंदर में कुछ न कुछ बात ऐसी होती है कि मैं सब कुछ कर लूँ, हर सिल्फ पर कादिर हो जाऊँ, हर सिल्फ पर तवाज़माई करूँ, हर सिल्फ पर लिखूँ। तो वो भी लगता है कि वो अदब इत्फ़ाल, तो वो अफसाना, तर्जुमा, नज़्म, गज़ल, कथा और भी दूसरी चीज़ें वो करते रहे। और नस्र का मामला ये था कि उनकी नस्र जो है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ होती थी। इसलिए कि जब ये तो आबशार का ज़माना चल रहा था, मैं बताऊं कि सालिक साहब उस वक्त सहाफ़त को ज़्यादा सहाफ़ती काम करने लगे जब मुश्तरका तौर पर इब्राहिम घोष और सालिक लखनवी दोनों ने मिल कर के हफ्त रोज़ा आसार निकाला था। हफ्त रोज़ा आसार का साइज, चमक दमक के एतबार से मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि एक आईना नाम का एक रिसाला निकला था, आईना। और मेरा ख्याल है कि वो जो अंसारी ने निकाला था शायद, तो वो बहुत चमक दमक के लिहाज से बहुत उम्दा था वो रिसाला। और उसी साइज पर, उसी स्टाइल में, उसी नहज पर आसार निकाला। दफ्तर आसार से या आसार अदारा की तरफ से वो निकलता था आसार, और आसार में उन्होंने एक कॉलम शुरू किया था, वो शेर फहमी का कॉलम, शेर को समझना, शेर की तशरीह करना। तो ये तशरीह करते थे वो समझते कि हर हफ्ते में, हर शुमारे में सालिक लखनवी ये करते थे। और कभी कभी वो दोनों मिल करके अदारिया भी कभी कभी लिखते थे, लेकिन ज़्यादातर अदारिया लिखते थे इब्राहिम घोष। सालिक साहब ये उन्होंने मुस्तकिल कॉलम था, अब कॉलम का नाम तो याद नहीं है, लेकिन वो तशरीह करते थे वो। तो ये तशरीह जो करते थे, इसकी गूंज दूर दूर तक पहुँची। मैं जब पढ़ता था तो उसमें खुतूत का कॉलम पढ़ता था तो दिखता था कि इसकी शतायत हो रही है और लोग जो है इसको पसंद कर रहे हैं। अब एक शायर का एक शेर को वो डील करते थे। अब एक शेर को डील करने के लिए जहाँ तक उनकी सकत थी, पहुँच थी, इस्तेदाद थी, वो कर देते थे और वो अच्छा पसंद भी लोग करते थे। लेकिन ऐसा है कि अखबार हो या रिसाले हों, हमेशा निकलेगा, और वो भी हिंदुस्तान के ऐसे इलाके में जहाँ आबशार को, अखबार को और रिसाले को ज़िंदा रहने के लिए ज़्यादा कुछ सहूलतें नहीं होती हैं, वहाँ मुश्किल हो जाती है किसी रिसाले का, अखबार का बराबर जारी रखना। अखराजात बहुत ज़्यादा आते हैं,
लेकिन ये है कि आमदनी उसके मुताबिक होती नहीं है। और एक आदमी कितना ही खुशहाल हो, पैसे वाला हो, फराक दिल हो, फयाज हो, शौक़ रखने वाला हो, लेकिन कब तक आखिर एक दिन वो हार जाता है। और यही हार जो है वो समझ लें कि वो आसार की किस्मत में भी लिख दी गई थी और फिर आसार बंद हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सही मानों में सादिक लखनवी अगर सहाफ़ी बने तो ये आबशार के दूसरे मरहले में जो अखबार निकला, पहला मरहला था शाम का अखबार था आबशार, और दूसरे मरहले में जो अखबार निकला वो सुबह का अखबार हो गया। तो और उसके पहले वो जो है सादिक लखनवी ने आसार निकाला, उसमें काम किया। तो काम करते करते आदमी के अंदर में बहुत सारी सलाहियतें पैदा हो जाती हैं और यही सलाहियतें सादिक लखनवी के यहाँ भी हो गई। एज ए मैं बात करूँ आदमी के लिहाज से, आदमी कैसे थे, तो बहुत ही मिलनसार भी मैं कहूँगा, और इतने रख रखाव से रहने वाले कि एक ज़माने उन्होंने कहा था सादिक लखनवी ने कि अंजुम साहब एक वक्त में मैंने दो कारें रखी, मैंने कारें रखी। अब सोचिए कि 2 कार रखने वाला आदमी की आमदनी क्या हो। तो ठाट बाट भी वैसी, तो कुछ शहजादा को देख रहे हैं हम। और अंजुमनों का ये आलम था कि कलकत्ते के बड़े बड़े अंजुमनों से वाबस्ता हुए। और मुझे ऐसा लगता था, मैं तहरीरी तौर पर कोई बात नहीं कर रहा हूँ, ना कहीं पर तहरीरी तौर पर लिखा हुआ मैंने देखा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि सादिक साहब में जो खूबियाँ थी, इंतज़ामी खूबियाँ थी, और रख रखाव के मामले में, वजह कता के मामले में, और एक शख्सियत के मामले में, तो मुझे ऐसा लगता था कि बाज़ अदारे चाहते भी थे कि सादिक साहब की शमूलियत इस अदारे में भी हो जाए। मामला ये था कि वो उसके लिए जो धुन उन पर सवार हो जाती थी, किसी को बनाना है, किसी को तोसी करना है, चाहे वो इमारत के तौर पर हो या और किसी सतह पर हो, तो सादिक साहब उसके लिए दिलो जान से वो काम करते थे। और यही वजह है कि बहुत से अदारों को उन्होंने तरक्की दी। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि कलकत्ते का एक पुराना अदारा, मेरा ख्याल है कि शायद मुमकिन है कि 100 साल उसके भी पूरे हो गए होंगे, उससे ज़्यादा पूरे हो गए होंगे, कलकत्ता मुस्लिम यतीम खाना, जो आज भी कायम है और बहुत ही शानदार तरीके से वो अदारा चल रहा है। और पूरे हिंदुस्तान में उस अदारे का एक नाम है, मुस्लिम यतीम बच्चों के लिए उससे बड़ा अदारा बंगाल में तो नहीं है, बिहार में भी नज़र नहीं आता है। हो सकता है किसी और स्टेट में हो, बाहर में हो, और भी स्टेट में अदारा हो सकता है उस किस्म का। लेकिन तो ये अदारा झोपड़ी में कायम हुआ था, और उस वक्त कायम हुआ था जब बुजुर्गों ने मुझे बताया कि सन 34 में जब ज़लज़ला आया था बिहार में, तो बहुत सारे बच्चे यतीम हो गए थे, औरतें बेवा हो गई थी, परिवार उजड़ गया था, मफलूकुल हाली का आलम था। तो ऐसे मौके पर हमारे अकाबरीन ने, हमारे बुजुर्गों ने, जो दर्द रखने वाले थे, और इंसानियत का दर्द, कौम का दर्द, माशरे का दर्द, उन लोगों ने सबको इकट्ठा करके कलकत्ते बुलाया, और उसके लिए कहीं पर झोपड़ी टाइप का कोई मकान लिया और उन लोग को वहाँ रखा। और फिर वही झोपड़ी टाइप का मकान बढ़ते बढ़ते कलकत्ते में पुख्ता 8 नंबर सैयद सालेह लेन में पुख्ता इमारत में मुंतकिल हुआ। लेकिन जितने बच्चों का इजाफा होता रहा हर साल, उस लिहाज से कुछ कमी भी पड़ गई रिहाइश के मामले में। लेकिन उससे ज़्यादा जो ज़रूरत थी कि यतीम खाना इस्लामिया का अपना स्कूल होना चाहिए। उस अदारे में ये सहूलत दी गई थी कि इस अदारे में रहने वाला जो बच्चा होगा या बच्चियां होंगी, उनकी तालीम के लिए बंदोबस्त किया गया था। और उनकी तालीम माध्यमिक, उस ज़माने में तो माध्यमिक नहीं था, जो भी हो, एंट्रेंस हो और मैट्रिक हो या स्कूल फाइनल हो, तो वो उसके लिए, उसके बाद उसकी तालीम के बाद लड़कों के लिए फिर ये था कि आप अपना कुछ काम तलाश कीजिए, कोई नौकरी कीजिए, कोई मुलाजमत कीजिए। और लड़कियों का मामला ये था कि जवान हो गई तो उसकी शादी ब्याह कर करके वहाँ से मुंतकिल जहाँ वो अच्छा। और ये जिम्मेदारी यतीम खाना ने उठाई थी
लड़के का देखना, लड़के का इंतखाब करना और शादी ब्याह के मौका पर जो कुछ भी तोहफा तोहफ़ घरेलू सामान वामान देने का, वो सब यतीमखाना कर। तो सालिक साहब ने सीओमो हाई स्कूल को तरक्की दी इमारती सतह पर, तालीमी सतह पर, और उनके दौर में जो यतीमखाना जिस यतीमखाना ने जितनी तरक्की की वो एक ज़माने तक के फिर और दूसरा को नहीं कर सका। बाद में फिर जो लोग आए उन लोगों ने भी तरक्की दी, और ये होता ही है। एक कमेटी ने जितनी तरक्की दी वो उसका जब सिलसिला ख़त्म हो गया, दूसरी आई तो अपने तौर पर उसने काम किया, तो आज वो भी तरक्की में है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सालिक साहब ने भी जो उस ज़माने में तरक्की दी थी उसका उनका वो नाम भी हुआ था, और आज भी मुस्लिम यतीमखाना सीओमो स्कूल उसी ज़माने का ही है। और तो और सालिक साहब के जब सेक्रेटरी थे उसी ज़माने में तरक्की पसंद शायर परवेज़ शायरी और कलकत्ता यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सुबह उर्दू के, तो वो वहाँ वो हेडमास्टर रहे, सालिक साहब के ज़माने में हेडमास्टर रहे, और उन्हीं के ज़माने में तरक्की पसंद शायर, नामवर अदीब और इंडिया टीवी के डायरेक्टर होकर के रिटायर होने वाले मजहर इमाम, वो भी वहाँ टीचर थे। तो सालिक साहब के ज़माने में तालीमी तरक्की हुई और तहरीरी तरक्की भी हुई, दोनों तरह की तरक्की हुई। इतनी तरक्की हुई कि समझ लीजिए कि आज उसी की बुनियाद पर इसमें मज़ीद तरक्कियाँ हो रही हैं, ये मैं कहूँगा। इसके साथ साथ मैं जहाँ तक जानता हूँ कि बिलगछिया में उर्दू हाई स्कूल का क़याम अमल में आया, तो वो स्कूल कमेटी में ये सालिक साहब जो है वो सरपरस्त के तौर पर थे या सदर थे मेरा ख्याल है। तो वो पाया बहास की हुकूमत थी, तो स्कूल के क़याम के लिए फ़ंड वगैरह का मुहैया करना अपने ज़राए से, अपने वसाइल से, अपनी बातों से, चूँकि सालिक लखनवी पार्टी के आदमी भी थे और उनकी बातों का लोग ख्याल भी रखते थे, ऊंचाई पर थे वो तमाम। इनका हल्का जो था वो परमेश्वरों के साथ मिलना जुलना था, तो इनकी बात पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी। और आज बिलगछिया में जो उर्दू हाई स्कूल कायम है, तो मैं ये कहूँगा कि वहाँ के तमाम नौजवानों की इसमें कोशिशें शामिल हैं, और उन्हीं की कोशिशों से, तमाम लोगों की कोशिशों से, मैं नहीं कहूँगा कि सालिक लखनवी की कोशिश है, लेकिन तमाम लोगों की कोशिश है। लेकिन राह बताई सालिक लखनवी ने, सरपरस्ती की सालिक लखनवी ने, इसको फंड फराहम करने में पेश रहे सालिक लखनवी। तो मैं इस स्कूल के हवाले से भी कहूँगा कि सालिक लखनवी का एक कारनामा ये भी है कि उन्होंने अपनी जीते ज़िंदगी तालीमी तरक्की दी है, एक सीओमो स्कूल की तरफ जानिब से या उसके प्लेटफार्म से, और एक बिलगछिया में उर्दू हाई स्कूल के ताल्लुक से। इसके अलावा उन्होंने बहुत बड़ा काम यह किया कि हिंदुस्तान की हिंदुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी तो कहाँ से चली है सबको मालूम है, आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी के बानियों में से बंगाल के मायानाज शख्स कॉमरेड मुजफ्फर अहमद थे, और उन्होंने अपनी सवानें लिखी है मैं और हिंदुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी। उसका तर्जुमा सालिक लखनवी ने उर्दू में किया, और इसकी ज़रूरत भी थी। और ये है तो ये उनकी कुर्बानी कह लीजिए, कुर्बानी तो मैं नहीं कहूँगा इसलिए कि वो भी पार्टी का आदमी थे, लेकिन ये पार्टी वर्क उनका था। लेकिन उसकी ज़रूरत थी कि एक ऐसा शख्स जो बुनियाद गुजारों में थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बुनियाद गुजारों में जो भी थे, उनकी किताब का तर्जुमा उन्होंने किया। इसके अलावा भी मगरबी बंगाल उर्दू अकादमी के वो 12 वर्षों तक चेयरमैन रहे। उस ज़माने में उन्होंने एक किताब लिखी बंगाल में उर्दू नस्ल की तारीख, तो ये है। और उनका कलाम मेरा ख्याल है कि वो 90 तक पहुँचे या 80-85 तक जब पहुँचे वो, तब उनका शेरी मजमूआ आया कलाम के नाम से। हालांकि ऐसा देखा जाता है कि अभी तो ये आलम है कि 4-5 बरस की शायरी के बाद भी लोग अपना मजमूआ कलाम ले आते हैं, लेकिन सालिक लखनवी ने इसकी ज़रूरत महसूस नहीं की। वो 80 के बाद, 80 की उम्र हो गई, इसके बाद उन्होंने कलाम लाया और
मैं ये बताऊं कि उसको सालिक साहब अखबार वगैरह में अपना कलाम भेजने से दिलचस्पी नहीं रखते थे, किसी ने भेज दिया तो भेज दिया, उनको इस सब से कोई मतलब नहीं था। शेर कहा, मुशायरे में पढ़ा, बस काफ़ी है। तो कलाम पर तबसरा के लिए किसी साहब ने उनके यहाँ जाना करते थे, नाम बताया था, मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने भेज दिया था हमारी ज़बान में। तो हमारी ज़बान में जो तबसरा हुआ, उस तबसरा को मैंने पढ़ा था, सालिक साहब ने हमको दिखा दिया कि देखते हैं साहब तबसरा हो तो आया है। तो तबसरा में लिखा कि ये ज़बान, कलाम में जो ज़बान इस्तेमाल की गई है, जो ज़बान की शायरी है, ये शायरी अब कम नज़र आती है। उन्होंने ये नहीं लिखा मुबस्सिर ने कि अब कोई नहीं है, नहीं, कम नज़र आती है। ज़बान की बड़ी दाद दी और फ़िक्र की दाद दी, कहा कि ये फ़िक्र, ये ज़बान के जानने वाले या बरतने वाले अब बहुत कम लोग रह गए हैं। तो मैं बताऊं कि उनके नाम के साथ सालिक लखनवी लिखा हुआ रहता था, और सही मानों में पूरी ज़िंदगी में उन्होंने कलकत्ते में अपने घर को उन्होंने लखनवी बना के रखा था, लखनऊ का घर था। उनकी ज़बान, उनके मुहावरे, मैं जब कुछ पूछता था कभी कभी कि सालिक साहब ये मुहावरा कैसा है, सही है कि नहीं, तो कहते थे अंजुम साहब मेरे लखनऊ में तो भाई ये कहा जाता है, मैं इसी को मानता हूँ। इसके माने कि वो उनको अपनी ज़बान पर, अपने मुहावरे पर, और वो लखनऊ को कभी भूलते नहीं थे, बात बात में वो लखनऊ का जिक्र करते थे। उनके वालिद तुलसी राम कपूर का बड़ा कारोबार था, वो डक लेबर बोर्ड में क्लियरेंस और क्या होता है लोडिंग वगैरह का। तो उनके इंतकाल के बाद भी वो फार्म में जिंदा था, कपूर एंड कंपनी। एक रोज मैं बैठा हुआ था तो देखा कि सालिक साहब एक पुलंदा लिए बैठे में खाली सिग्नेचर कर रहे हैं। भाई उनका सालिक साहब क्या कर रहे हैं? ये बोले अंजुम साहब मैं दस्तखत कर रहा हूँ भाई। तो बोले क्या है? बोले वो बाबा जी का जो फॉर्म है ना, उसी को दस्तखत कर रहा हूँ, पैसे वैसे वहाँ से आ जाते हैं। मैंने उसको ज़िंदा रखा। तो अब देखिए ज़िंदा रखने में ऐसी बात तो नहीं कि उनको पैसे की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने वालिद की एक याद को कायम रखा था कि भाई मेरे वालिद का ये फर्म है। सालिक लखनवी जो एल्डरमैन है कॉरपोरेशन में, जब वो बाया महाज की हुकूमत होगी तो एक तो कॉरपोरेशन में काउंसलर होते हैं, चेयरमैन होते हैं, और भी उस ज़माने में एक ओहदा बना था, एजाज़ी ओहदा या कह लीजिए या क्या ओहदा था, एल्डरमैन का। तो सालिक साहब एल्डरमैन बनाए गए थे और 2 साल तक रहे। तो इस लिहाज से भी उनकी एक वक़्त थी कि भाई एल्डरमैन है। सालिक साहब की जब सालगिरह मनाई जाने लगी तो 7 या 8 अदबी अदारे, उसमें उर्दू, हिंदी, बंगाली और भी दूसरी ज़बानों के अदारे जो थे, अदबी अदारे, तमाम अदारों ने मिल करके उनका जश्न मनाया था, जश्न सालिक लखनवी सालगिरह के मौका पर। और ये प्रोग्राम हुआ था उनके घर के करीब 2 नंबर सुदर्शन लाइन स्ट्रीट के करीब, और उसमें नज़ामत की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई थी। और सदारत मेरा ख्याल है कि कोई और साहब कर रहे थे, सदारत का मुझे याद नहीं है, मोहम्मद निज़ामुद्दीन भी हो सकते हैं और हाशिम अली भी हो सकते हैं, दोनों में कोई ऐसा लग रहा मुझे। तो समझ लीजिए कि सुबह 11 बजे से या 11:30 बजे से जो लोगों का आना शुरू हुआ, तांता बंधा, तो समझ लीजिए कि फुर्सत नहीं। हम लोग देख रहे हैं कि आ रहे हैं, कोई हार है, कोई गुलदस्ता है, कोई शाल है, क्या क्या। और ये सिलसिला रात 11 बजे तक चलता रहा, सुबह 11 बजे से 11 बजे तक बात ख़त्म हो गई। तो उनकी याददाश्त के लोग बड़ी तारीफ करते थे कि याददाश्त का ये आलम है कि वो पुरानी बातें कि मैं छोटा था, बाबा जी ऐसे करते थे, बाबा जी ऐसे करते थे, और ये हुआ और वो हुआ। तो जब मिलने के लिए गया उनसे तो उन्होंने पूछा कि अंजुम साहब कल वो फलां साहब को मैंने नहीं देखा, फलां साहब को मैंने देखा। उनकी सालगिरह में एक साहब आए थे पाकिस्तान से, वो कम्युनिस्ट नवाज आदमी थे, आए थे, सफ़र में आए थे, तो वो भी आ गए सालिक साहब की सालगिरह के जश्न में। तो उन्होंने भी गिटार उटार बजाया था और सालिक साहब के बारे में तकरीर भी की थी। रहमान तैमूर उनका नाम था, रहमान तैमूर।
تو انہوں نے، میں نے دیکھا کہ میرے سامنے انہوں نے اپنی کتاب، ایک شعری مجموعہ کو جو ان کا ہے، شعری مجموعہ کو اپنے دستخط کے ساتھ اور اپنا ایک شعر لکھ کے دیا. دیکھیے کہ 100 سال کا آدمی جو جس کی سالگرہ 100 سالگرہ منائی جا رہی ہے، وہ ہوش گوش کا اتنا مالک کہ اس وقت بھی وہ اپنے ہاتھوں سے شعر لکھ کر کے اور اس کا نام لکھ کر کے اس کو پیش کر رہا. صالح لکھنوی کے انتقال کے بعد یہ بھی ایک ریکارڈ ہے، ریکارڈ نہ بھی کہوں گا تو باعث اعزاز ہے ہم لوگوں کے لیے، اس لیے کہ ان کے انتقال کے بعد چند ہی روز کے بعد ہندوستان گورنمنٹ کی طرف سے پدم شری کا خطاب ملا، پدم شری کا اعلان ہوا. اور یہ خطاب، یہ اعلان اس وقت آبشار زندہ تھا، آبشار چل رہا تھا. تو میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ اعزاز آبشار کو بھی ملا ہے، بنگال کو بھی ملا ہے، کلکتے کو بھی ملا ہے، اردو والوں کو بھی ملا ہے. یہ اعزاز صالح لکھنوی کو ملا. اور اردو اکیڈمی نے انتقال کے بعد ایک کتاب نکالی ان کے اعزاز میں، ان کی یاد میں. کتاب کا نام تو یاد نہیں ہے، لیکن اتر پردیش اردو اکیڈمی نے نکالا، نے کتاب نکالی. اور اس کے بعد اس سے پہلے پارٹی سی پی ایم کا ترجمان کسان مزدور، اس نے ایک گوشہ شائع کیا صالح لکھنوی پر. اور اس کے بعد ایک نوجوان طاہر پرویز نے ایک کتاب نکالی، صالح لکھنوی شخصیت اور فن. اور ایک محقق تمنا پروین نے صالح لکھنوی کے پر تحقیق کی، پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی. ایک صاحب عثمانیہ یونیورسٹی سے ایم فل کیا. تو اس صورت سے ان کے انتقال کے بعد ان کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے، یا یوں کہہ لیے کہ ان کی خدمات کے اعتراف میں اتنے سارے کام ہوئے، جو میں سمجھتا ہوں کہ میری نگاہ میں یہ ہے کہ ابھی تک اتنے کام اور کسی کے تعلق سے کم سے کم میری نظر میں تو نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ جب میں شاعری میں نہیں آیا تھا اس سے پہلے اور لوگوں کا ہوا ہوگا، لیکن یو پی سے کتاب، یو پی اکیڈمی نے کتاب نکالی، یہ تو پہلی بات ہے میں سمجھ رہا ہوں ایسا. تو صالح لکھنوی کی تہدار شخصیت تھی، اور وہ تقریر کے اتنے ماہر تھے وہ کہ آپ وقت کا کوئی نہیں، بس بول رہے ہیں تو بول رہے ہیں، ٹمپو بول رہے ہیں، اور رسم اللسان ہو گئے اور بے تکان بول رہے ہیں، اور زبان ویسی، محاورہ ویسی. تو یہ سب خوبیاں صالح لکھنوی میں تھی. اور انہوں نے اپنی زندگی کے جتنے سال بھی پورے کیے اور جس ڈھنگ سے پورے کیے، ان کے ساتھ بھی کچھ پریشانیاں آئی تھیں، لیکن انہوں نے پریشانیوں پر قابو پایا. اور میں یہ بتا دوں کہ وہ زمانہ بھی انہوں نے دیکھا جب ان کا کارخانہ تھا ہاوڑہ میں قائم، اور وہ زمانہ بھی دیکھا جب کارخانہ نہیں بھی رہا، کچھ پریشانیاں بھی آئیں، لیکن پھر ان پریشانیوں کو انہوں نے اپنے ہمت سے، شجاعت سے، جرأت سے اور اپنے عقل و شعور سے ان پریشانیوں کو بھی دور کیا. اپنے بچوں کو تعلیم دلوائی. اور ان کے صاحبزادگان میں ایک صاحب مجلے صاحبزادے وسیم کپور، جو پینٹر نکل گئے، اچھے پینٹر. یعنی ان کا نام سمجھیے کہ پینٹنگ میں صرف بنگال ہی نہیں بلکہ جو پینٹنگ کے سلسلے سے ان کا نام بہت دور دور تک پہنچا. اور ایسا ہوا کہ میں جب جاتا تھا ان کے یہاں تو اکثر دیکھتا تھا کہ میڈیا کے لوگ وسیم کپور سے انٹرویو لے رہے ہیں، اور ان کی رائے جانا، کوئی ایشو اگر اخبار میں آتا تو میڈیا کے لوگ ان کی رائے جاننے کے لیے وہاں پہنچ جاتے تھے. تو ایک بار صالح لکھنوی نے مجھ سے کہا تھا کہ انجم صاحب، ایک زمانہ تھا کہ میرے بیٹوں کی شناخت ہوتی تھی یہ صالح لکھنوی کے لڑکے ہیں، آج میری شناخت ہو رہی ہے کہ یہ وسیم کپور کے والد ہیں. بنگالی ہندوؤں میں جو جن کی زبان مادری زبان ہے، وہ کہتے تھے کہ انہی وسیم البابا، یعنی یہ وسیم کے والد ہیں. تو صالح صاحب کو اس کی خوشی تھی کہ میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ایسا نکلا ہے جو آرٹ سے وابستہ ہے، پینٹر ہے، اور ان کی اتنی پہنچ ہو گئی ہے، ان کا اتنا نام ہو گیا ہے کہ آج بیٹے کے حوالے سے مجھے لوگ بنگالی حلقے میں جانے جاتے ہیں. اس سلسلے میں ایک واقعہ میں عرض کر رہا ہوں جو صالح صاحب سے لگتی ہوئی بات ہے. ہمارے کلکتے میں ٹالی گنج میں
टालीगंज एक स्टेडियम है, वहाँ उस वक्त के वज़ीर आला बुद्धदेव भट्टाचार्य की तकरीर थी और पार्टी के मेंबर होने के नाते मुझे भी जाना था। तो मैं एक मिनी बस में सवार था, मेरे बाजू में एक साहब बैठे हुए थे, वहाँ जा रहा था मैं टालीगंज। तो मैंने देखा कि उसने बैग से पेंसिल निकाली है और कागज, सफ़ेद कागज़ निकाला है, पुलिस का कागज़ निकाला है, और वो मुझे बार बार घूम कर देख रहे हैं। तो मैं समझ गया कि ये आदमी कुछ स्केच वगैरह करने वाला है। जब भी मुझे देख रहा है, उसने 10-15 मिनट के अंदर में स्केच खींच करके और मुझे दिखाया। वो दिखाया तो स्केच इतना उम्दा था कि दिल चाहा कि मैं उससे मांगने को, भाई मुझे दे दीजिए, लेकिन मैंने मांगा नहीं। मैंने पूछा कि बंगाली में पूछा कि भाई आपको क्या करेंगे आप? तो उन्होंने कहा कि मैं एग्जामिशन में लगाऊंगा। तो अपने एग्जामिशन में फ़ायदा लगाने का, बोले बहुत लोगों को पसंद आ जाएगा तो वो खरीद लेगा, मैं तो बेच दूंगा इसको। तो मैंने वो पूछा उनसे कि आप वसीम कपूर को जानते हैं? मैंने बांग्ला में पूछा, आपने वसीम कपूर को जाने? तो उन्होंने कहा कि क्यों जानबो ना, मैंने किस तरह कैसे नहीं जानेंगे उनको, बहुत मशहूर पेंटर है। ये बात तो उन्होंने जवाब दे दिया, लेकिन मुझसे पूछा बांग्ला में कि आप किस तरह से जानते हैं वसीम कपूर को? तो हम कहा कि मेरा ताल्लुक़ उनके फादर से है, उनके वालिद से है, उनके बाबा से है। बोलो लखनवी साहब? तो वो सालिक लखनवी नहीं बोल सके, बंगाली में मशहूर थे लखनवी साहब। तो वो लखनवी साहब उन्हीं तो कवि ना, हम हाँ उन्हीं कवि, उन्हीं शायर, हमारा जी हाँ शायर है। तो सालिक साहब बहुत अच्छी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी। एक बेटा निकल गया जो उसका नाम जिंदा रहेगा, उनका नाम भी जिंदा रहेगा। और सालिक साहब को तो सालिक साहब का तो नाम जिंदा रह ही सकता है, इसलिए कि जो उन्होंने काम किया, जितनी खिदमत अंजाम दी, उनकी खिदमत गिनवाने के लिए तो किताब चाहिए। और जो किताब निकल रही है, जाहिर बात है कि उसमें तमाम खिदमत की बात होगी, उनके आशार की बात होगी, उनकी शायरी की बात होगी, उनके अदबी मकाम की बात होगी। तो ये आज मैं जो गुफ्तगू आपसे कर रहा हूँ और जो सालिक साहब को मिलवा रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि आपने सालिक साहब के बारे में बहुत कुछ जाना होगा, बहुत कुछ सुना होगा, कुछ ऐसी बात भी होगी जिन्होंने आपने पहले भी सुनी होगी और मुझसे भी सुनी है। लेकिन दोस्तों ऐसा है कि एक नशिश में एक इतनी बड़ी शख्सियत के लिए, और खुसूसन जिसकी शख्सियत तहदार हो, वो तमाम बातें कहना मुमकिन नहीं है। मैं अपनी गुफ्तगू यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ। फिर अगर मौका मिला तो हम इसका दूसरा हिस्सा सालिक लखनवी का बोलना चाहेंगे, जो आपके इल्म में लाना चाहेंगे। उस वक्त फिर आपको मैं सालिक लखनवी से मिलवाऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपने इनसे मिलिए चैनल को सुना, मेरी गुफ्तगू सुनी, हो सकता है कि कुछ ज़बान की लड़खड़ाहट भी महसूस भी होगी, कुछ तो उम्र का तकाजा भी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितनी बातें सालिक लखनवी के बारे में मैंने कही है, ये बहुत सारी बातें जो है वो आउट ऑफ बुक्स है, किताबों में शामिल नहीं है। ये मेरे ज़ाती ताल्लुकात के पर मबनी की बातें हैं और 42 साल के ताल्लुकात रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये ताल्लुकात ही की देन है कि मैंने आपसे इतनी गुफ्तगू की। फिर मिलेंगे अगर खुदा